بھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، آج یہ جو محفل ہے وہ مسائل اعتکاف، فضائل اعتکاف کے سلسلے میں ہے. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ جم جانا، ٹھہر جانا. شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے رکنا، ٹھہرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے جسے نفلی اعتکاف کہتے ہیں، جو ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو کرتے ہیں بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. یہ تھوڑی دیر کا اعتکاف، یعنی جب تک آپ رہیں گے تب تک آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جیسے ہی باہر نکلیں گے اعتکاف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے. ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، جس کو ماشاءاللہ آپ لوگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت پر عمل کیا. جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے، اس کو تو سنت مؤکدہ اس کو بولتے ہیں. اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے کہ کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا، وقت نہیں رہا تو چھوڑ دیا اور موقع رہا تو پڑھ لیا. جیسے عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کہلاتی. تو سنت مؤکدہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد پھر اعتکاف کا بھی سلسلہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے تو سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. تو سمجھیے کہ جب تک 8 سال 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، کبھی چھوڑا نہیں. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو دوسرے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. اعتکاف کی جو اصل غرض ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ شب قدر مل جائے. اور معتکف کو بہت آسانی سے شب قدر مل جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں ہی رہتا ہے. وہ سو رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے اور کچھ عمل کر رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے. یہ فضیلت ہے معتکف کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 10 دن کا اعتکاف فرمائے، 1 سے 10 رمضان کا. پھر 10 سے 20 رمضان کا اعتکاف فرمائے. پھر آپ نے اپنے حجرے سے اپنا چہرہ مبارک نکالا اور فرمایا کہ شب قدر کی تلاش میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن فرشتے نے مجھے بتایا کہ شب قدر تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس لیے میں اس عشرے کا بھی اعتکاف کرنے جا رہا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ اس عشرے کا بھی اعتکاف کریں، یعنی آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں. تو سنت مؤکدہ کا مطلب یہ. علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ 40-50 لوگ، 60 لوگ، 70 لوگ اگر پڑھ لیے، یا قبرستان کے احاطے میں جو نماز جنازہ ہو جاتی ہے وہاں پہ 20-25 لوگ چلے جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو پورے شہر کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں. تو اس کو فرض کفایہ بولتے ہیں. تو سنت کفایہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی محلے کا بیٹھ جائے مسجد میں تو پورے محلے کی طرف سے کافی. اس لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کو بولتے ہیں. کوئی نہ بیٹھے تو سب گنہگار ہوں گے،
कोई नमाज जनाजा ना पढ़े तो सब गुनहगार होंगे, लेकिन 2-4 लोग पढ़ लिए, 2-4 लोग अगर एहतिकाफ में बैठ गए, एक आदमी बैठ गया, अगर बस्ती का शहर है तो मोहल्ला मोहल्ला मस्जिद है तो हर मस्जिद में एक आदमी बैठना चाहिए, और गांव है तो पूरे गांव पूरी बस्ती में से एक आदमी एहतिकाफ में बैठना चाहिए। अगर कोई नहीं बैठेगा तो पूरी बस्ती गुनहगार होगी सुन्नत छोड़ने की वजह से। तो एहतिकाफ की दूसरी किस्म है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। पहली किस्म है नफली एहतिकाफ, उसका खूब एहतमाम करना चाहिए। पहली किस्म का भी एहतमाम करना चाहिए कि जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, दाहिना पैर दाखिल किए, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। फिर ये जो दुआ मशहूर है, बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ, ये भी पढ़ सकते हैं। उस सुन्नतल एहतिकाफ का जो लफ्ज है उसका माना है नफल एहतिकाफ। बात समझ रहे? नफल अरबी जुबान में एक बड़ा लफ्ज है, उसके अंदर सारी चीजें हैं, उसके अंदर सारी चीजें मतलब ये कि सुन्नत वगैरह नफल के अंदर में आते, अरबी वाले नफल में। उर्दू का नफल अलग है। उर्दू का नफल हम लोग क्या समझते हैं कि पढ़ो तो सवाब है, नहीं तो कोई गुनाह नहीं, जैसे नफल नमाज रहती है, तो उर्दू का नफल अलग है। लेकिन अरबी में जो नफल का लफ्ज होता है उसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, फर्ज और वाजिब के अलावा। तो नफल का जो लफ्ज है, वर्ड है, इसमें सुन्नतें भी दाखिल हैं अरबी के एतबार से। तो इसलिए वो सुन्नतल एहतिकाफ का मतलब वो रमजान का एहतिकाफ नहीं है सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नतल एहतिकाफ का मतलब होता है नफली एहतिकाफ। तो जब जब भी मस्जिद में दाखिल हो इसकी नियत कर लें। नफली एहतिकाफ के सिलसिले में एक मसला ये भी है कि अगर कोई मस्जिद में आया, एहतिकाफ की नियत कर लिया, फिर वो वुजू खाने में चला गया या पानी पीने बाहर चला गया, उसका एहतिकाफ का सिलसिला खत्म। फिर जब मस्जिद में आएगा फिर से उसको नियत करनी पड़ेगी। नफली एहतिकाफ में ये मसला रहता है। जो लोग रमजान में, बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो पूरे महीने का एहतिकाफ करते हैं, तो 1 से 20 रमजान तक तो उनका नफली एहतिकाफ होता है और आखिरी अशरे वाला सुन्नत एहतिकाफ होता है। तो उनको मसाइल मालूम होना चाहिए कि जब बैठे तो ऐसा नहीं कि अब आपने 1 महीने की नियत कर ली है तो अब आपको नियत नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे रोजे में क्या है, रमजान के रोजे में आप 1 महीने पूरे रोजे की नियत नहीं कर सकते कि मैं 1 महीना पूरा रोजे की नियत कर रहा हूं, नहीं, हर रोजे की अलग नियत करनी है। जैसे दूसरी मिसाल, आप दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं तो सुबह में 5 नमाज की नियत कर सकते हैं क्या? नहीं, फजर की करो, फिर जोहर की करो, फिर असर की करो, हर नमाज की अलग नियत। इसी तरीके से एहतिकाफ नफली जो होता है उसमें ये मसला बहुत अहम है कि भाई आप 20 दिन बैठ रहे हैं, बैठो, खुशी से बैठो, लेकिन आपको मसला मालूम रहेगी। जैसे बाहर गए पेशाब पाने के लिए, अब अंदर आए एहतिकाफ की नियत करो, नहीं नियत करोगे एहतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग अगर अभी यहाँ बैठे एहतिकाफ की नियत ना करें तो हमको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे ही मैंने बताया कि जैसे ही पैर रखो दाहिना, दुआ पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ो, नंबर 2 पर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ो, नंबर 3 पर एहतिकाफ की नियत करो। एहतिकाफ की नियत अगर किसी को अरबी में नहीं आती है तो एक दूसरी नियत भी अरबी में है, नवैतुल एहतिकाफ मा दुमतु फिल मस्जिद, कि मैं एहतिकाफ की नियत करता हूं जब तक मैं मस्जिद में रहूंगा। अब अगर ये भी नहीं आती तो उर्दू में कर लो कि भाई जब तक मैं मस्जिद में हूं एहतिकाफ के साथ हूं, तो आपको एहतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा, नफली एहतिकाफ। और सुन्नत मुअक्कदा एहतिकाफ जो है उसको मैंने बताया, सुन्नत मुअक्कदा का मतलब बतलाया, किफाया का मतलब बतलाया। ये कब होता है? ये रमजान के आखिरी अशरे में होता है, पूरे 10 दिन का। 20 रमजान को मगरिब से पहले पहले, यानी इफ्तारी आपको मस्जिद में करनी है, क्योंकि जैसे ही इफ्तारी का वक्त होता है सूरज गुरूब हो जाता है, तभी इफ्तार का वक्त होता है। और सूरज जैसे ही गुरूब हुआ कि 21वां रमजान शुरू हो गया, अब कोई मगरिब बाद आए तो वो सुन्नत एहतिकाफ नहीं होगा उसका, क्योंकि वक्त गुजर गया, थोड़ा बहुत वक्त गुजर गया। उसको मगरिब से पहले पहले पहुंचना है मस्जिद में अपना साजो सामान लेकर, और मगरिब से पहले ही नियत कर लेनी है। जैसे मस्जिद में आए अब नियत कर ले कि मैं 10 दिन का सुन्नत एहतिकाफ करता हूं। सुन्नत मुअक्कदा एहतिकाफ में 1 मरतबा नियत कर लेना काफी है। आप बाहर अगर निकल रहे हैं जरूरत के लिए पेशाब पानी के लिए या वजू के लिए, फिर मस्जिद में आए तो आपको एहतिकाफ करने की नियत करने की जरूरत नहीं है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया एहतिकाफ में। क्यों? इसलिए कि आपने एहतिकाफ कर लिए, 10 दिन की नियत एक साथ हो जाती। जैसे
20 रकात तरावी की नियत एक साथ हो सकती है, और 2-2 रकात की भी आप नियत कर सकते हैं, लेकिन 20 रकात तरावी की भी नियत एक साथ हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर भी सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया में कि आपने जब मस्जिद में आ गए, आप नियत कर लें कि मैं 20 दिन का एहतिकाफ सुन्नत करता हूँ, तो आपका एहतिकाफ शुरू, यानी नियत हो गई। अब जैसे ही मगरिब होगी, सूरज डूबेगा, आपका एहतिकाफ शुरू हो जाएगा। और कब तक रहेगा? जब तक ईद का चांद नजर ना आए। ईद का चांद जैसे ही नजर आया, एहतिकाफ का सिलसिला खत्म। उसके लिए कोई दुआ करवाना, उसके लिए कोई फूल हार और इस्तकबाल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मसले चल रहे हैं अंदर अंदर से, समझ में आई बात? ये मिसाल मैं इसलिए देता हूं ताकि उससे मसला भी क्लियर होता रहे कि भाई स्पेशल दुआ कराना है या फूल हार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो इबादत होती नहीं, और जो थोड़ी बहुत होती है, हज उम्रा थोड़ा मोड़ा हुआ, उसमें इतना इस्तकबाल होता है और इतना फोटो खींची जाती है कि बेचारे का जो कुछ किया वो भी सब इधर उधर हो जाता है। फिर वो कहीं आई एम समथिंग आ गया कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं हाजी साहब हूं, मैं उम्रा कर लिया, मैं मोतमिर हो गया और मैंने एहतिकाफ किया, तो वो जो बेचारा किया था वो गुरूर में और तकब्बुर में सब बेकार हो जाता है। अरे भाई, आपको मोतकिफ से मिलना है तो जब वो एहतिकाफ में रहता है तब आकर मिल लो। अब ये क्या कि वो निकल रहा है, कहे दुआ की दरखास्त, दुआ का सारा टाइम कितना 10 दिन तो गुजर गया। अब चांद रात है, इसमें सबको दुआ करना है, वो बदले की रात है और इबादत की रात है और दुआएं कबूल होने की रात है, उसमें तो सब करो। डॉक्टर से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब दुआ करना, अरे भाई दवा लो और खाओ और इलाज करो, दुआ भी करेंगे। तो सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया, इसकी नियत कब से करनी है वो आपको बात सामने आ गई आपके, कब से शुरू होता है वो बात आ गई, कब तक रहता है। जैसे ही चांद निकलेगा एहतिकाफ का सिलसिला खत्म, आपके 10 दिन पूरे हो गए। चाहे 10 दिन पर चांद निकले, चाहे 9 दिन पर चांद निकले, वो आपको पूरा अशरे का सवाब मिलेगा, 10 दिन का पूरा सवाब मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में 29 का महीना होता है, 30 का होता है, लेकिन महीना पूरा है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं होता कि जो है 29 का चांद हुआ तो फिर 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है कि भाई 30 दिन होगा तभी तनख्वाह मिलेगी, ऐसा नहीं है। इस्लामी एतबार से वो सैलरी मिल जाती है, 29 का चांद होगी 30 का चांद। तीसरी किस्म एहतिकाफ की, एहतिकाफ वाजिब। ये कौन सा होता है? कोई आदमी इस तरह से कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह के लिए 2 दिन का एहतिकाफ लाजिम है, मैं अपने ऊपर लाजिम करता हूं 2 दिन का एहतिकाफ अल्लाह के लिए, ये वाजिब, ये मन्नत। दूसरी शक्ल वाजिब की, कोई कहे कि मेरा एग्जाम चल रहा है, अगर मैं फर्स्ट आ गया तो मैं पास हो गया, फर्स्ट का तो थोड़ा चांस कम रहता है, पास का ले लेते हैं कि अगर मैं पास हो गया तो मैं 1 दिन का एहतिकाफ करूंगा। तो अब ये पास हो गया तो इसके लिए 1 दिन का एहतिकाफ लाजिम है रोजे के साथ। ये जो मन्नत का एहतिकाफ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आगे मस्जिद में, रोजे के साथ, रोजा कंपलसरी। समझ रहे बात को? तो मन्नत वाला एहतिकाफ, या किसी ने कहा मुझ पर अल्लाह के लिए 1 दिन का या 3 दिन का या 2 दिन का एहतिकाफ लाजिम है, तो उसको एहतिकाफ उस पर लाजिम हो जाता है। एहतिकाफ जब लाजिम हो जाता है तो रोजे के साथ, यानी मगरिब से पहले आना है, बैठना है एहतिकाफ की नियत करके, और सुबह में सहरी खा के रोजा रखना है पूरा दिन। जैसे ही मगरिब होगी 1 दिन हो गया, 1 दिन की मन्नत माने थे तो 1 दिन हो गया। तीसरी किस्म, ये सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया आपने शुरू कर दिया, इसको पूरा करना लाजिम है, वाजिब है। ऐसे वाजिब नहीं है किसी पर, कोई बस्ती का कोई भी आदमी बैठ सकता है, लेकिन जो बैठ गया उस पर कंपलसरी, उस पर लाजिम हो गया कि वो मुकम्मल एहतिकाफ करे। अगर उसने छोड़ा या तोड़ा, छोड़ा मतलब घर चला गया, तोड़ा मतलब ये कि रोजा तोड़ दिया। और एक मसला अहम, ये जो सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया, ये जो आखिरी अशरे का एहतिकाफ है, इसके लिए भी रोजा कंपलसरी है। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सब मोतकिफीन की हिफाजत फरमाए, किसी का रोजा टूट गया, एहतिकाफ टूट गया, अब उसको 1 दिन की कज़ा करनी पड़ेगी, चाहे रमजान में मौका है तो रमजान में करे या फिर बाद रमजान के बाद करे।
बात समझो अच्छे से। इसी तरह एतकाफ टूट जाए, भूले से बाहर निकल गए या भूले से अजान खाने में आ गए चार्जिंग करने के लिए मोबाइल, ये अजान खाना मस्जिद की शरीयत से बाहर है। यहां अगर अजान देने आए कोई तो ठीक है, मोतकिब अजान देना चाहे दे सकता है, लेकिन चार्जिंग करने के लिए यहां पे आ रहे हैं, चार्ज करने के लिए मोबाइल, तो एतकाफ टूट जाएगा, क्योंकि ये शरीयत के बाहर है। शरीयत पर बात करेंगे अभी। तो रमजान का जो रोज एतकाफ है, अगर उसको किसी ने शुरू कर दिया तो पूरा करना वाजिब, और रोजा भी उसके साथ जरूरी। रोजा तो है ही फर्ज, रमजान का रोजा फर्ज ही है, लेकिन खुदा न खास्ता किसी की तबीयत खराब हो गई, दवा खाने की बात आ गई, या फिर वो भाई वुजू कर रहे थे और इतना जोर से कुल्ली के लिए पानी लिए, इतना तेज कि पानी ओवरटेक कर गया हलक से, हलक के नीचे चला गया, तो रोजा टूट जाएगा। गुनाह नहीं होगा आपको, लेकिन रोजा टूट जाएगा। अब रोजा टूट गया तो एतकाफ टूट जाएगा। कलीम वो एक शायर है मौलाना आमिर उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर है, ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। समझ रहे हैं? ये जो एतकाफ है ये बहुत ही नाजुक इबादत है, खास तौर पर ये सुन्नत मुअक्कदा वाला। नफली एतकाफ में तो कोई टेंशन नहीं, आपने नियत कर ली, एतकाफ का सवाब शुरू है, बाहर निकले एतकाफ का सिलसिला खत्म, फिर अंदर आए फिर नियत कर लिए, फिर शुरू, फिर बाहर निकले फिर खत्म। इसमें ऐसा नहीं, इसमें बहुत हिसाब से, भूले से भी अगर आप बाहर चले गए मस्जिद की शरीयत से, कोई दोस्त आया मिलने चले गए, एतकाफ टूट गया। अब एतकाफ टूट गया तो एक दिन की कज़ा रोजे के साथ लाजिम है। अब रोजे में है तो रोजा तो है ही है, एक दिन की कज़ा लाजिम, और फिर अब बकिया दिन जो आपके बचे वो नफल एतकाफ, सुन्नत एतकाफ टूट गया। तो एतकाफ का माना मतलब ये कि भाई अल्लाह के दर पर पड़ गए हैं, आ गए हैं, इस नियत से कि अल्लाह आप हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए तभी हम हटेंगे, वरना हटने वाले नहीं। एतकाफ का मकसद यही कि अल्लाह की रजा मिल जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। क्योंकि इंसान बाहर की जिंदगी में, बाहर की दुनिया में रहते हुए गफलत का शिकार हो जाता है और मस्जिद में आता है, नमाज के लिए फिर चला जाता है। मकसद जिंदगी अल्लाह की जो बंदगी है, इसमें कमी कोताही होने लगती है, गफलत होने लगती है। इसी तरीके से रमजान का मुकम्मल फायदा आदमी वही हासिल कर सकता है जो एतकाफ में बैठता है, वरना जो आ रहे हैं जा रहे हैं तो कुछ न कुछ गफलत हो ही जाती है। लेकिन जो एतकाफ में बैठ गया बस वो तो अल्लाह के दर पे पड़ गया है, अब वो तो अपनी मग़फ़िरत करवा के ही छोड़ेगा। समझ रहे हैं? वो तो अपनी मग़फ़िरत करवा के ही छोड़ेगा और अल्लाह ताला भी उसको माफ कर देंगे। किसी के दर पर आदमी पड़ जाए कि भाई हमको माफ करो, तो आदमी एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, फिर कहता है इसको माफ करना ही पड़ेगा। तो अल्लाह ताला तो ऐसे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ 2 बालिश आता हूं, जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ 2 हाथ आता हूं, और जो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। यानी अल्लाह की रहमत इस तरीके से बंदों का इस्तकबाल करती है। तो हम तो आगे अल्लाह के घर में, शाही महल में, हजरत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एतकाफ की मिसाल के बारे में कि कहीं फसाद हो रहा हो अल्लाह ताला नागपुर के हालात दुरुस्त फरमाए और नागपुर वालों पर रहम फरमाए। नागपुर ही को देख लो, अब उसमें कोई मिनिस्टर किसी आदमी को कहे कि आप मेरे घर में आ जाएं, फसाद हो रहा है बाहर तो आदमी कितना खुश होगा और कितना सुकून महसूस करेगा कि भाई कितना फसाद है बाहर, उठाए जा रहे हैं लोग, मैं तो मिनिस्टर साहब के घर में हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो हजरत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाहर की दुनिया में तरह तरह के गुनाह, तरह तरह के फितने, अब अल्लाह के घर में आ जाएं, हर गुनाह से आपकी हिफाजत, फितनों से हिफाजत, लड़ाई झगड़े से हिफाजत,
बहुत सारी चीजों से हिफाजत हो जाएगी। तो आदमी को कितना एहसान मानना चाहिए अल्लाह ताला का। कोई किसी मिनिस्टर मंत्री जंत्री के यहां रहने की बात नहीं, अगर मुलाकात हो जाए तो सेल्फी लेता है, उसको स्टेटस पे डालता है कि मेरी मुलाकात। समझ में आई बात? यहां तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में हम रह रहे हैं, कितना खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम जैसे गुनहगार। समझ में आई बात? तो मेरे भाइयों, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो एतकाफ में बैठने वाले हैं, खूब अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे वालिद साहब का हमारे घर के सामने भी मस्जिद है, तो एतकाफ में एक साहब बैठते हैं, कभी नहीं भी बैठते हैं, या बैठते हैं तो फिर चले जाते हैं बीच में छोड़ के। तो वालिद साहब से हमने कहा कि आप बैठ जाइए। वालिद साहब भी बोले हाँ मैं बैठने वाला हूं। हमने कहा बैठ जाइए, 10 दिन पता नहीं जिंदगी कब है, कितनी है, क्या है। और फिर एक आदमी के बैठने से पूरी बस्ती पर वबाल नहीं आएगा, और नहीं कोई बैठेगा तो फिर सब पर वबाल आएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो बैठना चाहिए एतकाफ में। हम शाही दरबार में शाही मेहमान होंगे 10 दिन तक। हदीस शरीफ में कि जो नमाज पढ़ने आते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं। हदीस में जो मस्जिद में आता है वो अल्लाह का मेहमान। तो हम 10 दिन तक रहेंगे तो शाही मेहमान। अब शाही मेहमान जो कोई होता है तो उसके प्रोटोकॉल और उसके आदाब और एहतराम भी शाही होने चाहिए। तो एतकाफ की बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यतकफ अशरन कान का हज्जतैन व उम्रतैन, कि जो 10 दिन का एतकाफ करे उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 1 दिन का एतकाफ करे अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, तो उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला हो जाता है, और एक खंदक की जो गहराई है और दूरी है आसमान और जमीन के बराबर। तो मतलब ये कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचा लेते हैं। 1 दिन के एतकाफ की फजीलत, 3 खंदकों की दूरी, और 10 दिन के एतकाफ की फजीलत हज और 2 उम्रे के बराबर। और मकसद जिंदगी जो हमारी है, अल्लाह ने हमें जिस लिए पैदा किया है कि हम इबादत करें, उसमें पूरा का पूरा वक्त सर्फ होता है। तो ये उसकी फजीलत है। किस मस्जिद में एतकाफ करना चाहिए? जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है उसमें एतकाफ करना चाहिए। अपने यहाँ माशाअल्लाह शहर में तो सब मस्जिदों में इस तरह से होता है, तो किसी मस्जिद में भी बैठ सकते हैं। यह है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में अगर कोई नहीं बैठ रहा है और आदमी अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में जाके बैठ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं। हाँ, कोई अपनी मोहल्ले की मस्जिद में बैठ रहा है तो फिर आप, चूंकि वो फर्ज किफाया, वो सुन्नत किफाया हो जाएगी सबकी तरफ से, तो आप फिर दूसरी मस्जिद में जा सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन कोई ना बैठ रहा और हम दूसरी मस्जिद में जाएं तो अपनी बस्ती वालों का हक और अपनी मस्जिद का हक पहले, ताकि सबकी तरफ से सुन्नत अदा हो जाए। मस्जिद में जब बैठे तो एक चीज का बहुत ध्यान दें कि मस्जिद की शरीयत कहां से कहां तक, ये जरूर मालूम कर लें। जामा मस्जिद में शरीयत में आपको समझा दूं कि ये जो सहन है, सफेद पत्थर जो लगे हुए हैं, ये ऊंचाई, ये मस्जिद की शरीयत है, वहां से लेकर वहां तक। और फिर ऊपर वुजू खाना शरीयत के बाहर है, क्योंकि सफाई अभियान है भाई, मस्जिद में थोड़ी सफाई अभियान होता है। तो मोतकिफ सहन में यहां पर वहां पर चाहे जहां बैठ सकता है, चल फिर सकता है, लेकिन अगर बाहर उसको जाना है तो जरूरत पर जा सकता है। मिसाल के तौर पर पेशाब, पाखाना या गुस्ल फर्ज हो गया, नाइट फॉल हो गया, थोड़ा और पहले आ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं। एतकाफ की नियत वगैरह मैंने आपको बतला दिया, कब आना है वो भी बतला दिया। अपना बिस्तर वगैरह भी लेकर आए, बिस्तर वगैरह लेकर आए, ओढ़ने की चादर भी लेकर आए, लुंगी भी लेकर आए। लुंगी कमरे का काम देती है। लुंगी क्या है?
कमरे का काम, यानी वो चेंज रूम होता है ना दुकानों में, तो लुंगी से क्या होगा कि आप कपड़े वगैरह बदल सकेंगे, और एतकाफ की हालत में कपड़ा वगैरह बदला जा सकता है, कोई मना नहीं है। क्योंकि एक ही कपड़ा 10 दिन आप पहनेंगे तो कपड़े की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, और जो आपके बाजू में खड़ा होगा उसकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी, उसकी नाक की। तो इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा, ये सब हदीस शरीफ है, ये सब हदीस शरीफ है। इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा, अल्लाह साफ सुथरे हैं, सफाई सुथराई को पसंद करते हैं। तो एतिकाफ की हालत में आप रोजाना भी कपड़ा बदल सकते हैं, और आपका जो मामूल है 2-3 दिन में कपड़ा चेंज करने का, तो वो भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन ये लुंगी रहेगी तो आप चेंज रूम का काम देगी आपके लिए, कि लुंगी पहन के, वरना कैसे चेंज करेंगे फिर, और कोई आ गया तो, और अल्लाह का घर है ये, और यहां नहीं आ सकते चेंज करने के लिए। ये अजान खाने में, अजान खाना जामा मस्जिद में शरीयत के बाहर है, इसमें जाएंगे बिला जरूरत। जरूरत मतलब ये कि अजान अगर किसी को देना है तो वो दे सकता है, उसके अलावा कोई काम तो है नहीं यहाँ। चार्जिंग वर्जिंग के लिए आए तो एतकाफ टूट जाएगा, कपड़ा बदलने आए एतकाफ टूट जाएगा, बात करने के लिए इधर आए एतकाफ टूट जाएगा। तो जब अपने घर से बिस्तर वगैरह लाएं तो बिस्तर थोड़ा मोटा हो, बिछाने का जो हो वो मोटा होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता किसी को नाइट कॉल वगैरह हो तो दरी खराब ना हो, मस्जिद की सब खराब ना हो, इसलिए गाढ़ा बिस्तर, बात समझ रहे हैं। और चादर वगैरह भी लेकर आए ताकि वो ओढ़कर सो सके, और भी जरूरत की जो चीजें हैं, इत्र वगैरह, खुशबू, कपड़े, लुंगी, किताब ला सकते हैं, कोई हर्ष। सुरमा, सुरमादानी, भाई सुरमा लगाना एहतिकाफ की हालत में सुरमा लगा सकते हैं, रोजे की हालत में भी सुरमा लगा सकते हैं। सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता है। और रात में सोने की सुन्नत है। तेल, साबुन भी रख लो, कभी जरूरत पड़ जाए। समझ में आई बात? तो शरीयत क्लियर रहना चाहिए। जहां पर भी आप एहतिकाफ में बैठ रहे हैं, शरीयत आपके सामने क्लियर है। पूछ लो भाई शरीयत कहां तक है। ये नहीं कि मस्जिद तो उसको भी मस्जिद बोलेंगे, वो जो है वो ऊपर का हिस्सा। समझ में आई बात? इसी तरीके से आप वुजू खाने में बैठे हैं, कोई पूछे आप कहां हैं, तो आप ये कहेंगे मैं मस्जिद में हूं। लेकिन मस्जिद की जो शरीयत है वो अलग होती है। और उर्फ में, मुआशरे में, सोसाइटी में मस्जिद किसको बोलते हो? पूरी सब मस्जिद है। और मोतकिफ के लिए शरीयत के अंदर ही एहतिकाफ करना चाहिए और शरीयत के अंदर ही रहना चाहिए। बस जरूरत तबीया, पेशाब पानी या गुस्ल फर्ज हो गया तो उसके लिए निकल सकते हैं। जरूरत शरिया, वुजू के लिए निकल सकते हैं। बस बाकी जो है अंदर ही रहना है, अंदर ही रहना है। भूल से भी अगर शरीयत के बाहर गया कोई, एहतिकाफ टूट जाएगा। वास्तव में फिर एक दिन की कज़ा। तो शरीयत बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए हर मस्जिद में। बात समझ रहे हैं? एहतिकाफ किस पर वाजिब है? एहतिकाफ बालिग पर वाजिब है। वाजिब मतलब जो एहतिकाफ में बैठ सकता है। नाबालिग पर तो कोई चीज फर्ज नहीं, लेकिन मान लीजिए 10-12 साल के लड़के हैं, वो बैठना चाहते हैं तो बैठे, कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज पढ़ने आते हैं वो, तो एहतिकाफ में भी बैठ सकते हैं। औरत एहतिकाफ में बैठ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो शौहर से परमिशन ले। ये सुन्नत एहतिकाफ जो 10 दिन का होता है। औरत कहां बैठेगी? औरत अपने घर की मस्जिद में बैठेगी। मस्जिद में का मतलब जहां पर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। कोई कमरा, हम ये कहते हैं कि जब घर बनाओ तो एक प्रेयर रूम और घर की मस्जिद भी बनाओ, ताकि उसमें औरत नमाज पढ़े। किसी को रात में तहज्जुद पढ़ना है वहां जाकर पढ़े, वहां की लाइट चालू करे। समझ में आई बात? और औरत को एहतिकाफ करना हो तो उसमें एहतिकाफ कर सके। एक कमरा होना चाहिए घर में। लेकिन मान लीजिए कि नहीं है, तो औरत कभी यहां पढ़ रही है नमाज, कभी वहां पढ़ रही है, तो फिर कोई जगह खास कर लें। ये हम एहतिकाफ की जगह खास करते हैं। अब चाहे तो पूरा कमरा खास कर लें, चाहे तो उतना एरिया खास कर लें कि ये हमारा मोतकफ है। दोनों जायज है।
जितना खास करेंगे उसी के अंदर फिर वो रह सकती हैं, वही रहें बिला जरूरत। अगर बाहर निकली तो एहतिकाफ टूट जाएगा। बात समझ रहे हैं? बाज मरतबा औरत एहतिकाफ में बैठती है, अम्मी बैठती है और अम्मी सुबह में सबको उठाने जा रही है, चलो भाई उठ जाओ सहरी खा लो, तो एहतिकाफ अम्मी का टूट जाएगा। उठाने की जिम्मेदारी अम्मी की नहीं, अब्बा की है। समझ में आई बात? तो वो उसी एरिया में रहेंगी। हाँ, पेशाब पानी के लिए जा सकती हैं और आ सकती हैं और वही रहें। हाँ, वहां रहते रहते कुछ काम करना चाहे, सब्जी भाजी काटना है तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते उस कमरे में, या उस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन एक जरूरी मसला ये कि शौहर की इजाजत लेनी चाहिए। समझ में आई बात? कि हाँ मैं 10 दिन की एहतिकाफ बैठना चाहती हूँ, शौहर बोले ठीक है बैठ जाइए तो बैठ जाए, शौहर मना करे तो फिर वो ना बैठे, ये शौहर को हक है। शरीयत के बारे में बात आ गई। अब जो है मस्जिद में क्या काम करना चाहिए एहतिकाफ की हालत में? या तो इबादत करें या तो आराम करें, बातचीत ना करें। शुरू में बातचीत अच्छी होती है, दीन की बात होती है, बाद में दुनिया की बात शुरू हो जाती है, फिर शॉपिंग पे चली जाती है, क्या बाकी है, क्या करना है, कहाँ जाना है। समझ में आई बात? ये दुनिया की बातें होंगी और मस्जिद में अल्लाह के घर में तो सवाब के बजाय गुनाह होगा। इसलिए बात करो मत, बस हाल खैरियत, बस ठीक है। खाने बैठो, हल्की फुल्की बातें हो जाएं, एकदम खामोश रहना एहतिकाफ की हालत में और उसको इबादत समझना ये भी गलत है। जरूरत के मौके पर बात की जा सकती है, जरूरत के मौके पर कुछ सीखना सिखाया किया जा सकता है, तालीम व ताल्लुम की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपके साथ एहतिकाफ में कोई हाफिज साहब है, मौलवी साहब, तो आपको कुरान नहीं आ रहा है तो आप कुरान सीख लो, एहतिकाफ का भी सवाब मिल रहा है, कुरान सीखने का मौका मिल गया। या फिर कोई किताब की तालीम हो जाए, थोड़ी देर 10-15 मिनट, आधा घंटा कुछ सीखना सिखाना हो जाए, ताकि उस हिसाब से 10 दिन हम गुजारें। ऐसे अकेले अकेले बैठे रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे और उसको समझेंगे कि बहुत सवाब का काम है, तो ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं मतलब ये कि कुछ सीखना सिखाना भी होना चाहिए, वो भी सवाब है। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहां पर तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन दुनिया की बातें, फालतू बातें ना हो। और कोई नहीं है आपकी मस्जिद में, आप ही हैं 1-2 लोग, तो बस अपना खाओ पियो, इबादत करो और आराम करो, दुनिया की बातें मत करो। या तो इबादत करो, काम करो, या फिर आराम करो, क्योंकि मोतकिफ का सोना भी सोना है, यानी गोल्ड है, उसको सवाब मिलता रहेगा। तो काम करना क्या है वो मैंने आपको बतलाया। इसी तरीके से मस्जिद की सफाई का खूब ख्याल रखें। ये नहीं कि दस्तरखान बिछ रहा है, शरबत गिर रहा है, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जो मस्जिद की सफाई करने वाले लोग हैं उनको बता दिया जाए कि यहाँ थोड़ा गिर गया, इसको साफ कर लिया जाए, वरना फिर वो चींटी आएंगी और फिर मस्जिद गंदी होगी तो गुनाह होगा। दस्तरखान का इस्तेमाल किया जाए और सफाई सुथराई का ख्याल किया जाए। सोने में भी सफाई सुथराई का ख्याल किया जाए। नाखून वगैरह काट सकते, लेकिन हिसाब से काटो। और वो जो कचरा है, नाखून है, कोई आए उसको कागज में लपेट के दे दो कि भाई पाक जगह में इसको डाल दो, या किसी पॉलिथीन में उसको रख के कह दिए कि भाई पाक जगह में नाखून डालो। ये नहीं कि कहीं पे भी डाल दिए, इधर बाहर डाल दिए, और खिड़की से डाल रहे हैं और फिर अंदर आ रहा है, या मस्जिद में ही पड़ा हुआ है, ये सब जायज नहीं है। बेहतर यह है कि आप सफाई सुथराई के साथ एहतिकाफ में बैठें। अभी आपके पास 1 दिन है, 2 दिन है, कल बैठना है ना, तो बेहतर ये, कल जुमा भी है और जुमा को सफाई सुथराई करना अच्छी चीज है। तो बाल की कटिंग, नाखून की कटिंग, और भी बालों की कटिंग, बगल के बाल, जेरनाफ के बाल, जो कुछ भी है, कल सफाई सुथराई कर लो अच्छे से, और फिर एहतिकाफ में बैठो सुकून के साथ। 10 दिन में नाखून नहीं बहुत बड़े हो जाते, 10 दिन बाद जब निकलना तो इससे पहले भी काट लेना। इन बातों का ख्याल रखें। किसी को एहतलाम हो जाए, कभी होता है, तो क्या करे? बेहतर है कि फौरन निकल जाए वो, क्योंकि वो गीला गीला लगता है तो उठ जाते हैं, आंख तो खुलती है। तो बेहतर है कि उसी वक्त वो मस्जिद से निकल कर, यानी गुसल खाने में चले जाए, बाथरूम में, और नहा के फिर आ जाए। लेकिन अब रात है, 2 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि कहीं मामा मिल जाए,
समझ में आई बात? ऐसा भी रहता है, लेकिन ऐसा कुछ डरने का नहीं कभी भी। जो अल्लाह से डरता है सारी दुनिया उससे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता है सारी दुनिया उसको डराती है। ये जिन्नात लोग तो हमसे डरते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये मशहूर है कि जिन्नात लग गया उसको, वैसे कभी मोमिन कामिल किसी जिन्नात को टकरा जाता है तो उनको इंसान लग जाता है। वो जिन्नातों में ये मशहूर हो जाता है कि इसको इंसान लग गया। इसलिए डरने का नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके सीने में कुरान है, आपके सीने में आयतुल कुर्सी है, बिल्कुल घबराने का नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मसला समझो, किसी को एहतलाम हो गया, फौरन निकल जाए मस्जिद से, जाए नहाए, और वो कपड़े वगैरह जो हैं पॉलिथीन भी लेकर आए, कैरी बैग लेकर आए जरूर, ताकि आप जो कपड़ा चेंज करें उसको कैरी बैग में डाल दें। बल्कि हमारे हजरत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी नक्शबंदी दावत बरकात में फरमाते हैं हज उम्रा करने वालों के लिए कि जब आप लोग हज उम्रा करने जाएं तो अपने बैग में हर कपड़े का सेट रखें, सेट के साथ कपड़ा रखें और उसको कैरी बैग में रखें, ताकि उसको निकालें और ये जो आपने पहना है उसको उसमें डाल दें। और कैरी बैग नहीं होगा, सब कपड़े मिक्स होंगे, वो आप पसीना वाला भी, सब एकदम अजीब। तो एहतिकाफ में भी आ रहे हैं तो हर कपड़े का अलग कैरी बैग, ठीक। अब अगर जो कुछ कपड़ा उतार रहे हैं उसको उसमें डाल दिए, घर वाले आए उनको दे दिए, ले जाओ भाई इसको। तो रखने में, लाने में, ले जाने में बहुत आसानी कैरी बैग से। एहतलाम हो गया, फौरन निकल जाओ। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का दिल नहीं हो पा रहा है, हिम्मत नहीं हो रही फौरन निकलने के लिए, वो सोच रहा है सब उठेंगे तो वो अमीर साहब उठेंगे, या फिर जो है अपना कोई बड़ा साथी उठेगा तो मैं फिर जाऊंगा, तो अब उसके लिए मसला ये है कि वो तयम्मुम कर ले। ये मार्बल है, इस पर तयम्मुम जायज है, टाइल्स पर भी तयम्मुम जायज है, सब पर तयम्मुम जायज नहीं, क्योंकि इस पर मिट्टी, ये तो फिर इतनी मिट्टी होनी चाहिए। कांच पर तयम्मुम जायज नहीं है, उस वक्त जायज है ये कपड़े पर या कांच पर, जबकि ऐसा अगर हाथ मारो तो डस्ट उड़े तो फिर इन चीजों पर तयम्मुम जायज। लेकिन अपने यहाँ मस्जिद में ऐसा है नहीं, तो ये जो मार्बल है इस पर तयम्मुम जायज है। तो हर मस्जिद जो है दीवार की होती है और उसमें मार्बल कहीं है, कहीं चूना है, कहीं कुछ है, तो उस पर तयम्मुम जायज है। कहीं टाइल्स है, तो कैसे तयम्मुम करना है? तयम्मुम का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि नियत करो कि पाकी के लिए तयम्मुम करता हूं। नियत फर्ज है तयम्मुम में, वुजू में नियत फर्ज नहीं, लेकिन तयम्मुम में नियत फर्ज है। नियत नहीं करोगे तयम्मुम नहीं होगा। तो पाकी की नियत से तयम्मुम करो, समझ गए। और दीवार पर हाथ मारो, जैसे मान लीजिए दीवार है तो ऐसा हाथ मारो, ऐसा करो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो गर्द गुबार है वो थोड़ा कम हो जाए, झड़ जाए, और फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेरो। लेकिन गर्द गुबार ना हो तो भी ये तरीका जो है वो करना है आपको। ऐसा दीवार पर, टाइल्स पर, या नीचे ये पत्थर है इस पर आप हाथ मारो और ऐसा करो, फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेरो, कहीं जगह खाली ना रह जाए, दाढ़ी का खिलाल कर लो। फिर दूसरी मर्तबा हाथ मारो और ये इस तरीके से, इससे, इसके जरिए से, और फिर इसके जरिए से पूरे हाथ यहां तक अच्छी तरीके से हाथ पहुंचा दो, एक एक जगह पर। समझ में आई बात? फिर ये बचा हुआ है इसको इस तरीके से फिर खिलाल भी कर लो। ये तयम्मुम हो गया। अब आप रुके हैं आधा एक घंटा, तो रुके रहो, क्योंकि अब आप पाक हो गए। अब वो नापाकी जो लगी वो तो नापाक है, लेकिन तयम्मुम होने की वजह से आप अब नापाक मस्जिद में नहीं ठहरे रहेंगे। वो जो गुनाह होता है कि जुनूबी शख्स मस्जिद में नहीं आ सकता है, जिस पर गुस्ल फर्ज हो मस्जिद में एंटर नहीं हो सकता है, ये मसला है। अब आप जुनूबी हो गए और मस्जिद में हैं तो फौरन नहा लेना चाहिए, लेकिन अगर ताखीर हो रही है, लेट हो रहा है, तो आप तयम्मुम कर लो, फिर जैसे ही मौका मिले जाके नहा लो। सवाल ये है कि क्या मोतकिब जुमा के लिए या गर्मी से बचने के लिए नहा सकता है? उसका जवाब ये है कि बेहतर मसला ये है कि न नहाए। सिर्फ गुस्ल फर्ज हो तो उसको वो नहा सकता है, बाकी जुमा के लिए और गर्मी से बचने के लिए उसके लिए नहाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा करना चाहे कि वो पेशाब पानी के लिए जाए, टॉयलेट के लिए जाए, और फिर जैसे ही फारिग हो फौरन फटाफट 2-4 लोटा पानी डाल ले, ये नहीं कि साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, आराम से नहा रहे हैं, एहतिकाफ टूट जाएगा।
अब गर्मी होती है भाई, बेचैनी होती है पसीने की, ये वो, तो उसका तरीका है कि 2 in 1, 2 in 1। तो कैसे? आप पेशाब पानी करने गए, उसके बाद वुजू तो करना ही होता है, तो वुजू करने का जो टाइमिंग है उसी में जल्दी जल्दी आपने पानी डाल दिया और जल्दी से फिर मस्जिद में आ गए, तो आपका वुजू भी हो गया। क्योंकि जो नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, उसमें वुजू हो जाता है, क्योंकि वुजू के जो आज़ा हैं, बॉडी पार्ट्स हैं वुजू के, वो सब धुल जाते हैं, तो वुजू भी हो जाता है और नहाना भी हो गया और गर्मी से बचना भी हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बहुत आराम आराम से नहीं, खूब शैम्पू लगा के, साबुन लगा के, वो सब नहीं, जल्दी जल्दी। लेकिन स्पेशल नहाने के लिए निकलने से एहतिकाफ टूट जाएगा। फर्ज गुस्ल होगा, कोई मसला नहीं। समझ रहे? तो ये कुछ मसाइल और फजाइल आपके सामने एहतिकाफ क्या है। कुछ बाकी रह गए हो, आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इसी तरीके से एक अहम मसला कि खाने के लिए, हाथ धोने के लिए निकल सकते हैं क्या बाहर? नहीं निकल सकते। खाने के बाद हाथ धोने के लिए निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। यहां जामा मस्जिद में इधर और उधर बाल्टी रख दी जाती है, तो खाने से पहले हाथ धो लो बाल्टी में और खाने के बाद धो लो। बर्तन धोने की जिम्मेदारी घर वालों की, आपकी नहीं है। बर्तन रहने दो, ले जाएंगे वो, बात समझ रहे हैं? तो ये इंतजाम हो जा रहा है, इसलिए नहीं निकल सकते। लेकिन कहीं इंतजाम ना हो और कोई शक्ल भी ना हो, अब खाने के बाद हाथ तो धोना है, यहां तो इंतजाम होता है, और इंतजाम हो सकता हो तो इंतजाम करना चाहिए, और फिर बाहर निकलने से एहतिकाफ टूटेगा। इंतजाम नहीं हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है, रहता है, सब मस्जिदें ऐसी भी रहती, तो फिर खाने के बाद जो हाथ धोना है उसकी एक शक्ल ये है कि भाई आप सिरफ्ची वगैरह में धो लें और कोई बर्तन हो उसमें धो लें और फिर वो पानी फेंक दिया जाएगा। ये भी नामुमकिन हो ऐसा, हालांकि ये नामुमकिन नहीं है, तो फिर निकलने की गुंजाइश होगी कि जल्दी से हाथ धोकर आ गए, लेकिन ना निकले तो अच्छा है। और 2 ऑप्शन मैंने बताया, एक तो ये कि यहां बाल्टी रख दी जाए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। दूसरा ये कि बड़े बाउल में धो लिया जाए, टब रखा जाए, सभी धो लें उसमें। लेकिन टब रखने से और धोने से मस्जिद गंदा होने का अंदेशा है, लोग एहतियात नहीं करेंगे, मस्जिद में पानी गिराएंगे, तो फिर मजबूरी में, चूंकि ये एक जरूरत की चीज है, अब सालन लगा हुआ है, कहां घूमेंगे, तो फिर धो सकते हैं। लेकिन ये सब ना हो सके तो, बल्कि ये मसला भी लिखा है कि मस्जिद में रहते हुए अगर वुजू कर सकता है कोई और वुजू का पानी मस्जिद में ना गिरे, तो वुजू के लिए भी मस्जिद से बाहर जाना जायज नहीं है। जैसे बड़ी मस्जिद में, मस्जिद शरीफ के बगल में ही वुजू खाना है, एकदम जस्ट, तो वहां पर वुजू करें मोतकिफ, बाहर न जाए इधर उधर। लेकिन हर मस्जिद में ऐसा इंतजाम नहीं होता है। शुरू में यहां पर भी किया गया जामा मस्जिद में कि यहां वुजू खाने की टंकी बनाई गई, मतलब ये कैसा बनाया गया बैठकर, लेकिन उसमें होती थी तकलीफ इस बात की कि पानी मस्जिद के अंदर गिरता था और मस्जिद की फर्श खराब होती थी, सफे खराब होती थी, तो ये जायज नहीं है। तो फिर वुजू खाना जा सकते हैं। और बड़ी मस्जिद में बेहतरीन इंतजाम है, हमने देखा है उसको, आप लोगों ने भी देखा हो, तो वो अच्छी बात है। फिर मोतकिब बाहर नहीं जाएगा, वहीं रहते हुए वुजू कर लेगा, पानी भी बाहर चला जा रहा है। बात समझते हैं? ये मसाइल है, और किसी को कोई बात समझनी है, पूछनी है, पूछ सकते हैं। खाना आपके घर का कोई फर्द लाएगा, कभी ऐसा होता है कि कोई लाने वाला नहीं है खाना, तो मोतकिब घर जाकर खाना खाकर आ सकता है, यह भी है। यानी इतनी सहूलत इस्लाम में। लेकिन अगर कोई लाने वाला है, आपका बेटा है, भाई है, अब्बा है, चचा है, ताया है, जो भी है, तो फिर आप नहीं जा सकते। मस्जिद के अंदर टॉयलेट नहीं है कहीं पर, घर पे टॉयलेट है, घर जा सकते हैं टॉयलेट करने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज के जमाने में तो हर मस्जिद में टॉयलेट है। यानी दीन हमारा किस तरह से, किस हिसाब से, वो आपके सामने हम पेश करें। और कोई सवाल किसी को करना है, पूछना है, पूछ सकते हैं।
औरत एतकाफ करती है कमरे में, क्या वहां पर कोई और भी लेट सकता है, सो सकता है? सो सकता है, कोई हर्ष की बात। लेकिन मियां बीवी के ताल्लुकात एतकाफ की हालत में नहीं होंगे, वरना एतकाफ टूट जाएगा। शौहर लेटना चाहे वहां कमरे में लेट सकता है। कभी औरत का दिल घबराता है अकेले लेटने में, तो उसकी बेटी, बहू, बेटा, शौहर लेट सकते हैं। लेकिन वो जो खुसूसी मामलात है मियां बीवी के, वो नहीं हो सकते। इसी तरीके से खातून एतकाफ में बैठी, उसको पीरियड आ गया, एतकाफ टूट जाएगा, उसको एक दिन की कज़ा करनी पड़ेगी। रोजा भी टूट गया, एतकाफ भी टूट गया, एक दिन की कज़ा उसको बाद में करनी पड़ेगी। ये भी एक मसला है। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल एतकाफ की हालत में कर सकते, लेकिन कम से कम कीजिए। बाद लोग जैसे पेशावर होते हैं, कारोबारी होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, अब वो गाइड करना जरूरी होता है, तो वो कर सकता है, समझ में आई बात। लेकिन कम से कम एहतियात। ये नहीं कि हर वक्त मोबाइल में बयान सुनना है, मोबाइल में। अभी बयान सुनने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, अपने अमाल करें और कुछ सीखने सिखाने की फिक्र करें। कुरान अगर आपका सही है तो हिफ्ज करो, कुछ सूरतें याद करना शुरू कर दो। कुरान सही नहीं है, अगर कोई हाफिज साहब, आलिम साहब हैं, उनसे अपना कुरान पाक सही करो। ये भी इबादत है। 10 दिन में इंशाअल्लाह बहुत सारे कवर हो जाएगा, बहुत सारा कवर हो जाएगा। समझ में? नमाज सीख लो, नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली चीजें सीख लो, उसमें जो कमी कोताही है उसको दूर कर लो। यहां जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह हम टाइम देंगे, और ये हुज़ैफा भी बैठ रहे हैं, ये हाफिज बन रहे हैं माशाअल्लाह। तो मैंने इनसे कहा है कि कुरान शरीफ सिखाएं, जिनको सीखना रहे, हुरूफ सही करना हो तो ये टाइम देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आधा घंटा बस। वरना अपने अपने मामूलात में रहेंगे, अपना याद करेंगे। लेकिन 24 घंटे में से आधा घंटा, पौन घंटा ये देंगे, बात हो गई है। और मैं भी इंशाअल्लाह दूंगा थोड़ा बहुत टाइम, समझ रहे हैं? तो आप जिस मस्जिद में बैठे उस इमाम साहब से थोड़ा सेटिंग कर लें कि भाई हमको 10-15 मिनट, ताकि कुछ सीखें समझें। 10 दिन का टाइम है आपके पास, वरना फिर ये कि इबादत तो करना ही है, लेकिन सीख भी लो, समझ भी लो, कुछ चीजें अपनी क्लियर कर लो। कहां मौका मिलता है बाद में? तो ये चीजें हैं। कोई और सवाल हो किसी को पूछ सकते हैं। मोबाइल वगैरह का चार्ज करना है तो मस्जिद के अंदर ही कर सकते हैं, और हिफाजत से करें, देख कर करें। ये नहीं कि चार्जिंग में लगा के सो गए, फिर अल्लाह न करे कोई लेकर रवाना हो जाए। आजकल ऐसा वीडियो आ रहे हैं। एक सफीर साहब बेचारे नमाज पढ़ रहे थे, गुजरात का है वीडियो। एक आदमी आया, आराम से वुजू किया, वो सफीर साहब का बैग लेके निकल लिया, क्योंकि उसमें माल रहता है। वो वीडियो दिखा रहे हैं, देखो ये लेकर जा रहे हैं। तो अपने सामान की हिफाजत खुद करें, किसी को चोर ना समझे। समझ में आई बात? अपने सामान की हिफाजत खुद करें, सब चीजें खुले में न रखें। और एक बात, चूंकि मस्जिद में आप रह रहे हैं, पंखा यूज कर रहे हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, तो जब एतकाफ से निकलने लगे, बहुत अच्छी बात है कि कुछ साथी सब मिलकर कुछ न कुछ पैसा जमा करके मस्जिद वालों को दे दें कि भाई हमने इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया है, तो ये हमारी तरफ से। ये वाजिब और जरूरी नहीं है, मसला समझो। मस्जिद खुदा का घर है, एतकाफ अल्लाह के घर की आबादी ही के लिए है। नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो एतकाफ वालों पर कोई कंपलसरी नहीं है कि वो पैसा दें इलेक्ट्रिक का, क्योंकि ये एतकाफ तो एक इबादत है। तो इबादत खाने में ही होगी, और लोग चंदा देते ही है ना, सब इस्तेमाल होगा। लेकिन एक अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, कोई करना चाहे तो कर सकता है कि भाई हमने इस्तेमाल किया, अपनी जाती चीजों में भी इस्तेमाल कर लिया, मोबाइल वगैरह में, तो कुछ पैसे मस्जिद वालों को दे सकते। कोई ना दे तो उस पर प्रेशर न डालें कि यार तुम पैसा नहीं दे रहे हो, आप दे दो। आप भी नहीं दे रहे, मत दो। और कोई सवाल किसी को पूछ सकते हैं। ये सवाल है, इसको देखना पड़ेगा। हालांकि इसको पिछले सालों में हमने बयान किया, लेकिन अभी जहन में नहीं। देखिए, अब चूंकि आप अल्लाह के मेहमान हैं, तो अल्लाह मियां तो आएंगे नहीं कि लो जन्नत का खाना खा लो। अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है, ये अल्लाह का दस्तूर है।
تو अगर कोई बंदा आप आता है, कहता है भाई हम आप हजरात की दावत करना चाहते हैं, और उस बंदे का माल वगैरह सही है, समझ में आई बात, 2 नंबरिया नहीं है, सूद ब्याज नहीं है, तो दावत कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो समझो कि अल्लाह की तरफ से ही है। आम दिनों में तो आता नहीं दावत देने वो, लेकिन अब दे रहा है तो दावत कबूल करना कोई हर्ज की बात नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल फरमा लिया करते थे। लेकिन ये सब चीजें देख दाख कर, ये नहीं कि अब 2 नंबरिया है तो चलो एतकाफ वालों को खिला के अपना माल हलाल कर लेते हैं और इनका सारा तबाह बर्बाद कर देते हैं जो भी सवाब है। तो ऐसा ना, फिर अगर कोई शक शुबे वाला है तो फिर माजरत कर दें कि अभी जरूरत नहीं है, फिर बाद में देखेंगे। ये नहीं कि तुम्हारा माल 2 नंबर का है, तुम्हारी दावत कबूल नहीं की जाएगी, ऐसी दिल तोड़ने वाली बात ना करें, हिसाब से उसको माजरत कर दें। और अगर अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, वो दावत खिलाना चाहता है तो कबूल कर लें, बता दें साथी कितने हैं, टाइमिंग क्या है खाने का, उसको बता दें, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ये कि बहुत शोर गुल ना हो, एकदम से जश्न वाला मामला ना हो, आए वो खिला दें चले जाएं, कोई हर्ज की बात कर सकते हैं। कमीशन यानी वही रिश्वत। देखिए दलाली तो जायज है अगर सही काम की कर रहे हैं तो। कोई जमीन बिकवा रहा है, कोई आपका कोई काम करवा दे रहा है, तो वो चूंकि अपना कोई कस्टमर ले जा रहा है दुकान पर, तो वो सेटिंग कर सकते हैं कि मैं दुकान पर कस्टमर लाऊंगा, एक कस्टमर का 20 रुपए लूंगा, जायज है वो भाई लेकर जा रहा है ना वो धूप में, यानी शरीयत में समझा रहा हूं, मसला जायज है वो। वुजू न होने की सूरत में नमाज पढ़ने और कुरान मजीद को हाथ में लेकर पढ़ने के लिए वुजू एक शरई जरूरत है, लिहाजा निकल सकते हैं। लिहाजा सूरत मसूला में मोतकिफ वुजू न होने की सूरत में हर उस इबादत के लिए वुजू करने जा सकता है जिन इबादत में वुजू शर्त है, मसलन नमाज पढ़ना, कुरान करीम वगैरह छूना, नमाज तरावी पढ़ना। हत्ता कि अगर नवाफिल की अदायगी का इरादा हो और वुजू ना हो तो वुजू के लिए जा सकता है, क्योंकि नफल पढ़ने का इरादा है बेचारे का, चलो तहज्जुद पढ़ लेते हैं या फिर अव्वाबीन पढ़ लेते हैं, तो अब वुजू जा सकता है, ठीक है, मसला है। चलिए और कोई सवाल? वुजू है फिर वुजू करने के लिए जाए तो फिर ये जरूरत नहीं है, बिला जरूरत बाहर जा रहा है तो फिर एतकाफ टूटेगा, समझ रहे हैं? और कोई सवाल भाई? ये देखिए वो जो मैंने अभी बताया, क्या एतकाफ में मुस्तहब वुजू आदमी कर सकता है? मुस्तहब यानी वुजू है फिर भी वुजू कर रहे हैं। बसूरत मसूला जिन इबादत के लिए मसलन नमाज तिलावत वगैरह के लिए वुजू जरूरी है, उसके लिए मोतकिफ का निकलना दुरुस्त है। ताहम मुस्तहब वुजू यानी वुजू पर वुजू करना जरूरी नहीं है, लिहाजा उसके लिए मोतकिफ का निकलना जायज नहीं है, वरना मसनून या वाजिब एतकाफ फासिद हो जाएगा। और कोई सवाल भाई? अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और बैठ जाए एतकाफ में जो बैठने वाले हैं, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला समझना हो तो हमसे राब्ता कर सकते हैं, दीगर मुफ्तियान इकराम शहर में उनसे भी राब्ता कर सकते हैं, टेंशन न लें। जिससे होता है कभी बैठ गए कोई बात समझ में नहीं आ रही तो राब्ता किया जा सकता है, मसले मसाइल पूछे जा सकते हैं। हम तो यहाँ जो लोग रहेंगे तो मैं तो मिलता ही रहूंगा, लेकिन मैंने बाकी सारी बातें उनको समझा दी है। और हाथ धोने के लिए यहाँ पर बाल्टियां रखी जाती हैं, तो जब बाल्टी का इंतजाम है तो फिर बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हिसाब से धोएं, ऐसा ना धोएं कि मस्जिद गंदी हो, ऐसा ना धोएं। समझ में आई बात? दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे हैं। प्यारे अल्लाह, हमें बंदगी का सलीका सिखा दीजिए, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह, जो हजरात एतकाफ में बैठना चाहते हैं, आपके घर का मेहमान बनना चाहते हैं, प्यारे अल्लाह उनके लिए बैठना आसान फरमा दीजिए, कबूल फरमा लीजिए। तमाम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक एतकाफ की इबादत को अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हर तरह की कमी कोताही से हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा लीजिए। जहां जहां भी लोग एतकाफ में बैठ रहे हैं,
پیارے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجیے، زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اعتکاف کے جو فضائل ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ معتکفین کو نصیب فرما دیجیے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے ان کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ مقصد زندگی سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، غفلت سے، لایانی سے، بیکاری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، غیبت سے، بہتان سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ رمضان المبارک عظیم الشان بابرکت مہینہ چل رہا ہے، دوسرا اشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ پیارے اللہ رمضان کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو وعیدیں ہیں ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے، رمضان کی محرومی سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ ہمارے شہر میں اور ناگپور شہر میں اور جہاں جہاں بھی غزہ میں اور اسی طریقے سے یو پی کے مختلف علاقوں میں جہاں پر شر پسندوں نے فتنے پھیلائے ہیں، پیارے اللہ ان کے شر پسندی کو عیاں کر دیجیے، ان کی شر پسندی کو ظاہر اور باہر کر دیجیے، ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجیے، اور جو بے قصور مسلمان جیلوں کے پیچھے ہیں باعزت ان کی رہائی نصیب فرما دیجیے، ان کے روزوں تراویح کو صحیح طور پر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ باطل نے منصوبہ بنا کر مسلمانوں کی تجارت پر ضرب لگائی ہے، پیارے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجیے، مسلمانوں کے گھر بار میں کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دیجیے، ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ شجاعت اور بہادری نصیب فرما دیجیے، جذبہ شہادت دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہر طرح کی علت سے، قلت سے، ذلت سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ شمس الحق صاحب کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی خدمات کو قبول فرما دیجیے، شہر کو ان کے لیے ان کی طرح نعم البدل عطا فرما دیجیے، ان کی جگہ بہترین کوئی مخلص شخص عطا فرما دیجیے جو پورے شہر کو جوڑ کر لے کر چلنے کی فکر کریں۔ پیارے اللہ جو بھی ہمارے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا